Praise the Lord and welcome once again. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। Celebrating today Palm Sunday, आज हम खजूर के रविवार को मना रहे हैं। triumphant entry of Jesus प्रभु into Jerusalem. यीशु मसीह का विजय के साथ में प्रवेश। It's good to look back अच्छी बात है पीछे मुड़कर इतिहास को देखना and go over all the events that have taken place before the death of Christ. और तमाम वो घटनाएं जो यीशु मसीह के मौत के ठीक पहले घटी उन घटनाओं को देखना। We can read the scriptures and find it in all the gospels. और हम पवित्र शास्त्र में पढ़ के सारे सुसमाचारों में उन घटनाओं को पढ़ सकते हैं। Shall we turn our Bibles to the 12th chapter of John's Gospel? आइए हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। We are reading from verse 12 और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं to verse 9 till verse 19. 19 आयत तक। On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord. दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon, as it is written, Fear not, daughter of Zion, behold thy king cometh, sitting on an ass's colt. जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। These things understood not his disciples at the first, but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, that they had done these things unto him. उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। The people therefore that were with him, when he had called Lazarus out of his grave and raised him up from the dead, bear record. तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle. इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how he prevail nothing? Behold, the world is gone after him. तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। Hallelujah. हालेलुया। All the Gospels give record of this event. सारे सुसमाचारों में इस घटना का उल्लेख है। It says, we call it the triumphant entry of Jesus. इसे हम यीशु मसीह का विजयी प्रवेश कहते हैं। We know this, that Jerusalem had lakhs and lakhs of people. हम इस बात को भी जानते कि यरूशलेम में लाखों की संख्या में वहां लोग थे। They had come to keep the feast of the Passover. वे लोग फसह के पर्व को मनाने के लिए उस जगह में आए हुए थे। And somehow this news goes on to them about Jesus Christ. और यीशु मसीह के बारे में यह समाचार उन लोगों तक पहुंच गया। And it says over here, और यहाँ पे लिखा है, the raising of Lazarus from the dead was a big miracle which people knew and understood. कि लाजर नाम के आदमी का मुर्दे में से जिलाए जाने की घटना लोग जानते थे और ये बड़ा आश्चर्य कर्म के रूप में उनके सामने था। 4 days dead. 4 दिन का मरा हुआ लाजर, He is there. वो अभी वहां जिंदा था। He's there as an evidence. वो एक गवाह के रूप में वहां उपस्थित था। And many came to see him also.
और बहुत से जो भीड़ के लोग उसे भी देखने आए थे। And they, when they saw him, many believed on Christ. और बहुत से लोगों ने जब उसे देखा उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। The Pharisees and the scribes did not like that. और फरीसी और सदूकियों को ये चीज बहुत अच्छी नहीं लगी, They were always against Christ, क्योंकि वे हमेशा यीशु मसीह के विरोधी थे, always trying to trip him here and there. हमेशा उसको यहाँ वहाँ गलती पकड़ना चाहते थे। And now the time has come. और अब वो घड़ी आ पहुंची थी। This is the final journey of the Lord on this earth. प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर की आखिरी यात्रा का समय था। He has spent 33.5 years. उसने 33.5 साल इस पृथ्वी पर बिताए थे। I do not know how the Son of Man could live on this among these wicked people. और मैं नहीं जानता कि परमेश्वर का पुत्र इस दुष्ट संसार में कैसे इस समय को काटता था। 30 years years of obscurity. और 30 साल का उसका एक गुमनामीपन भी हमें पता चलता है। Maybe he was helping out in his father's business, संभव है वो अपने पिता की इन दिनों में उसके कार्य में मदद करता था, being the eldest son. क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा भी था। But when he came out to minister, परंतु जब वो अपनी सेवकाई के लिए निकल पड़ा, he was 30 years old. वो 30 साल की उम्र का था। And now और अब he knows his time has come. वो जान गया था उसका वक्त आ गया है। 3.5 years 3.5 साल have passed का समय गुजर गया था since Jesus began his earthly ministry. जब से उसने अपनी पृथ्वी पर की सेवकाई को शुरू किया था। Unselfish, और निस्वार्थ भाव से, sacrificial, बलिदानों से भरा हुआ he ministered to the people. उसने लोगों की निस्वार्थ रूप से सेवा He किया था। ministered to individuals and to the multitudes. उसने अलग अलग लोगों को और भीड़ को सामूहिक तौर पर भी उनकी सुधि ली थी। Preaching the gospel, सुसमाचार का उनसे प्रचार करता healing था। the sick, बीमार जो आते थे चंगा करता था। delivering the people, लोगों को छुटकारा देता था। casting out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। showing the people the heart of God. और लोगों को परमेश्वर का हृदय कैसे है वो बताता था। So much so the people said like this, और इतना कि लोग ऐसा बोलने लगे, he has done all things well. उसने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया है। Hallelujah. हालेलुया। He has done all things well. उसने सब कुछ अच्छा किया He है। makes the lame to walk and the blind to see. लंगड़े आदमी को उसने चलाया, अंधे को उसकी आंखें खोल दी। Now the time has come किंतु आज वो समय आ गया था to fulfill the purpose for which he came, उस उद्देश्य को पूरा करने का, वो घड़ी जिसके लिए वो आया to था। fulfill the prophecies which had gone on before. उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए जो पूर्व समय में आ चुकी थी। Jesus said, I have come to do thy will, O God. यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने In the को आया हूं। volume of the book it is written of me, और मेरे विषय में किताबों में लिखा हुआ है I have come to do thy will. कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करने को आया हूं। He knew what was awaiting him in Jerusalem. यीशु मसीह को पता था कि यरूशलेम में कौन उसकी राह देख रहा है। Exactly what has to happen, prophets had prophesied. और जो जो घटना घटेगी वो सटीक तौर पर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताया गया था। Zechariah 9 chapter 9th verse says, जकरिया नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 9वीं आयत में लिखा है। it is the prophecy in regards to this event. और वो इसी जो घटना यहाँ घट रही थी उसी को लेकर जकरिया ने लिखा था। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly, riding upon an ass, and upon the colt the foal of an ass. हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Matthew's Gospel 21st chapter 5th verse says, मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय में वही बात फिर से लिखी हुई है। Tell ye the daughter of Zion, behold your king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, the colt, the foal of an ass. मत्ती 21 के 5 में लिखा हुआ है, माफ करें। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर।
Amen. आमेन। And John writes and says, "Fear not, O daughter of Zion, behold your king is come." और यूहन्ना लिखते हुए कहता है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा चला आता है। You see, Jesus always said, "I have come to do the will of my Father." देखिए, यीशु मसीह ने हमेशा से ही ये कहा था कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने को आया हूँ। Now the time has come. और अब वो समय आ गया The था, final week वो आखिरी सप्ताह पहुंच गया and the था final hours और आखिरी घड़ी आ गई थी to perform that which God had planned from eternity. उस कार्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने अनंत काल से तय किया था। And Jesus set his face to go towards Jerusalem. और यीशु मसीह ने अपने चेहरे को यरूशलेम की ओर जाने के लिए दृढ़ किया। Amen. Amen. He focused himself. उसने अपना ध्यान उस ओर केंद्रित किया He knew what was awaiting him. और उसे मालूम था क्या चीज वहां पर उसकी बाट जो रही है, He knew rejection. और उसे मालूम था तिरस्कार क्या He चीज knew है, people will falsely accuse him. और उसे यह भी मालूम था वहां पर लोग उसे झूठी गवाही उसके ऊपर में देंगे, आरोप लगाएंगे। He knew he'll be condemned. और उसे मालूम था कि वहां उसे दोषी ठहराया जाएगा। They will spit on him. They'll pull his beard. उसे मालूम था लोग उस पर थूकेंगे, उसकी दाढ़ी को नोचेंगे। Crown of thorns will be placed on his head. उसे मालूम था उसके सिर पर कांटों का मुकुट चढ़ाया जाएगा। Cross was awaiting him. और वहां पर एक क्रूस उसका इंतजार कर रहा And था। yet he set his face towards Jerusalem. तो भी यीशु मसीह ने अपने चेहरे को यरूशलेम जाने को दृढ़ किया। Time of his earthly journey उसके पृथ्वी के यात्रा का वो समय has come. वो आ गया था। And he's not begging out. और यीशु मसीह किसी भी तरह से इस कदम को बढ़ाने से पीछे नहीं He हट said, रहा "For this था, hour I have come." क्योंकि उसने कहा मैं तो इसी घड़ी के लिए यहाँ आया हूँ। So he focused with a purpose. और उसने आगे देखा एक उद्देश्य के साथ। He set his face like a flint. उसने जैसे एक तीर के समान उसने अपने ध्यान को सीधा किया। That's what the prophet says in Isaiah. यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार से बोलता है, That he set his face like a flint. जैसे एक चकमक का पत्थर होता वैसे उसने अपने दृष्टि को आगे किया, That he is not going to turn back. कि वो अब उससे कहीं भी दाएं बाएं मुड़ने वाला नहीं है। Amen. Amen. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, God's purposes will come to pass. परमेश्वर के उद्देश्य निश्चित तौर से पूरे होंगे। Jesus knew what was awaiting him in Jerusalem. यीशु मसीह को मालूम था यरूशलेम में कौन उसकी राह देख रहा है। Jesus knew for what purpose he had come there. यीशु को मालूम था किस उद्देश्य से वो इस पृथ्वी पे आया है। He had said before. उसने पहले भी कहा था। From that time, Jesus began to show unto his disciples और उस समय से यीशु अपने चेलों को ये दिखाने लगा how he must go to Jerusalem कि उसे यरूशलेम में कैसे जाना है and suffer many things और कैसे बहुत सा दुख उठाना है of elders and chief priests और महायाजकों के हाथ में और पुरनियों के हाथों and में scribes और शास्त्रियों के हाथों and be killed and rise up on the third day. और कैसे वो उनके हाथों में मारा जाएगा और कैसे वो तीसरे दिन मुर्दों में से You जी see, उठेगा। Jesus is showing these things. यीशु मसीह उन लोगों को ये बातें पहले ही बता रहा, He's telling his disciples. अपने चेलों को पहले ही तैयार कर रहा। See, because they had a different picture in their mind. क्योंकि देखिए इन चेलों के मन में यीशु को लेकर कुछ और ही भावना थी। They knew that they won't get a leader like this. उनको मालूम था कि यीशु के समान और दूसरा अगुवा अब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। They were fed up with the Romans. वे रोमी लोगों के साम्राज्य से थक चुके थे। They were fed up with the scribes and Pharisees. और शास्त्री और फरीसियों से भी वे लोग थक चुके थे। And they had the man of their choice. और उनको जैसा व्यक्ति चाहिए था वैसा व्यक्ति उनके सामने था। If anybody had the power to topple that government, और यदि किसी आदमी के पास उस पूरी सरकार को पलटने की ताकत थी, it was Jesus Christ. तो वो स्वयं यीशु मसीह था। I do not know what was going through their mind और मैं नहीं जानता कि इन चेलों के दिमाग में कैसी बातें दौड़ रही थी, or with the crowd. या फिर उस भीड़ के मन में क्या था। They might be thinking, will there be some bloodshed? और वो सोचते भी होंगे कि कहीं कुछ खून खराबा तो नहीं होगा। Or will there, when we take over, will there be any commotion? क्या जब हम यहूदी लोग फिर से राज करने लगेंगे तो क्या वहां पर कुछ हलचल होगी। They had not understood the whole purpose of God. और वे परमेश्वर के उद्देश्य को अब तक समझ नहीं पाए And थे। Jesus again said, यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, behold, we go up to Jerusalem, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं and the Son of Man shall be betrayed और मनुष्य का पुत्र वहां पकड़वाया into जाएगा the hands of chief priests and scribes. शास्त्रियों के और फरीसियों के हाथ They shall में, kill him to death. और वे लोग उसे वहां पर मार डालेंगे। Amen. Amen. So Jesus was not keeping them in dark, यीशु मसीह किसी रीति से अपने चेलों को अंधकार में नहीं रखा था, but somehow they couldn't grasp
grasp what he was saying. परंतु किसी कारण से ये चेले यीशु क्या कह रहा था उसे समझ नहीं सक रहे थे। And he said earlier, और यीशु ने पहले भी उनसे कहा था, nevertheless I must walk today कि मुझे आज भी चलना है, and tomorrow कल भी मुझे चलना है, and the day following. और उसके बाद भी। It cannot be और ऐसा नहीं हो सकता that the prophet will not perish out of Jerusalem. कि कोई भी भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। Oh Jerusalem, Jerusalem, और उसने देखकर कहा, यरूशलेम, हे you यरूशलेम, who kill the prophets, तू जो भविष्यवक्ताओं को मारता you है, stone them that are sent unto thee. और तूने उनको जो तेरे पास भेजे गए तूने पत्थरवाह किया। How oft I would have gathered you under my wings, कितने बार मैंने Like- चाहा like a hen. तुझको एक मुर्गी के समान जो अपने बच्चों को संभालती अपने पंखों तले ले लूं, You would not. लेकिन तू नहीं चाहता। His focus was Jerusalem. यीशु मसीह का दृष्टि यरूशलेम की ओर His था, focus was the cross. उसका दृष्टि क्रूस की ओर His था, focus was sacrifice. उसका दृष्टि बलिदान था। He knew what he's come for. वो जानता था वो किस काम के लिए आया He है। said, the hour has come, Father. उसने कहा, पिता वो घड़ी आ पहुंची है, Glorify your son. वो अपने बेटे को महिमा दे। If I be lifted up, यदि मैं ऊंचे पर उठाया I'll draw जाऊं, all men unto me. मैं सारे लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा, उसने कहा। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, Purpose of God परमेश्वर का उद्देश्य is salvation of mankind. वो मनुष्य जाति का उद्धार है, And that could be only done और ये तभी हो सकता है with a perfect sacrifice. जिसके पीछे में एक संपूर्ण सिद्ध बलिदान हो। Hallelujah. Hallelujah. Mercy, करुणा, grace अनुग्रह came by the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। What a sacrifice. क्या बलिदान था। Amen. आमेन। I sometimes cannot imagine मैं कई बार समझ नहीं पाता, कल्पना नहीं कर how पाता Jesus spent these 33.5 years on this earth. कि यीशु मसीह ने कैसे ये 33 साल इस पृथ्वी पर बिताए। We read about those 3.5 years. हम तो केवल 3.5 साल के उसकी सेवकाई को पढ़ते हैं, In Nazareth, नाजरत में रहते हुए, not in Jerusalem. यरूशलेम में नहीं। He experienced what we experience. उसने वो सब अनुभव किया जो मैं और आप जिससे गुजरते हैं। The taunts and the mocking of people. लोगों का ठट्टा करना, मजाक उड़ाया जाना, Many things बहुत सी बातें what come upon us. जो हमारी जिंदगी के ऊपर आती हैं, He went through them all. यीशु उन सब से होकर गुजरा है। From domestic problems घरेलू समस्याओं से लेकर to social discrimination. और सामाजिक भेदभाव में से भी गुजरा है। He went through all. प्रभु यीशु मसीह इन सब से होकर वो गया, He did not back out. लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटा। Oh Jerusalem, हे यरूशलेम, city of God, परमेश्वर की नगरी, you who kill the prophets, तू जो भविष्यवक्ताओं को मारता है stonest them that are sent to thee. और तेरे पास जो भेजे जाते उनको पत्थरवाह करता है। He came to his own, ये अपनों के पास वो आया own received him not. और अपनों ने ही उसे ग्रहण The नहीं way किया। God wants them to receive, they did not do it. जिस प्रकार परमेश्वर चाहता था कि वे लोग उसे ग्रहण करें, उन्होंने नहीं किया। He was not only focused, यीशु मसीह न केवल आगे बढ़ते हुए अपनी ध्यान केंद्रित किया, he prepared himself उसने अपने आप को आगे की घटना के लिए तैयार किया, for the task. उस कार्य के लिए। Amen. आमेन। So he sends 2 of his disciples वो अपने चेलों को भेजता है and says, go into so and so's place. और कहता कि फलाने फलाने जगह में तुम जाओ You will find an ass tied और वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा and a colt of an ass. और एक गधी का बच्चा भी। So loose them and bring. उन्हें खोल कर ले आना। And if any man asks you, और यदि कोई व्यक्ति तुमसे पूछे "Oh, why are you doing this?" कि तुम ये क्यों कर रहे हो, Just tell them the Lord has need. उनसे कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। Amen. आमेन। This is another miracle. ये एक और चमत्कार है। They're bringing a colt of an ass on which never a man sat. वो एक ऐसे गधे को लेकर आ रहे थे जिसके ऊपर आज तक किसी इंसान ने सवारी नहीं की थी। That itself is a miracle. ये अपने आप में एक आश्चर्य कर्म था। This colt is not used to people sitting on him. और ये जो गधी था वो आदि नहीं था कि कोई उसके ऊपर में बैठे। Untrained, untamed. अप्रशिक्षित और जिसे कभी सिखाया नहीं गया। To use them. उस ऐसे जानवर को इस्तेमाल करना। You see, when Christ is in control, देखिए, जब नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है,
training doesn't matter. वहां पर प्रशिक्षण का कोई मायने नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। Taming doesn't matter. और किसी प्रकार से सिखलाई मायने नहीं रखती। This colt was not used to crowds either. और ये जो जानवर था ये भीड़ भाड़ से भी आदी नहीं था। People have to train the animals to get used to the sounds of the gun. लोग जानवरों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो बंदूक की आवाज से वो आदी हो जाए यदि वहां जाना है। A war horse is not disturbed by the sound. और युद्ध में जाने वाले जो घोड़े होते हैं वो आसपास हो रहे धमाकों से वो घबराते नहीं, Because they've been conditioned into that. क्योंकि ये जानवर इन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किए जाते। But this colt परंतु ये जो गधी का बच्चा था is being tied there without doing anything. वो वहां पर यूं ही बंधा हुआ था, कोई प्रशिक्षण नहीं था। You might be in that condition. आज सुबह हो सकता आप भी ऐसी एक परिस्थिति में हैं। You might never know that God will use you to fulfill a prophecy. आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको एक भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। Some corner where nobody knows you, कोई कोने में आपको कोई जानता भी नहीं, untrained. अप्रशिक्षित है। Today, आज के दिन much talk is about training. बहुत बातें होती हैं प्रशिक्षण को लेकर। Thank God for good training. प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे प्रशिक्षण के लिए। But when God calls somebody, परंतु जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, He takes control. परमेश्वर नियंत्रण लेता है। You can counsel that man, you can put knowledge on that person, and still he may not change. आप किसी व्यक्ति को सलाह देंगे, आप उसको सिखाएंगे, संभव है तो भी ना बदले। Maybe somebody is in that situation today. हो सकता आज के दिन कोई ऐसे ही स्थिति में है। Everybody has given up on you. हर एक व्यक्ति ने हार मान लिया आपसे। This guy is beyond redemption. ये कहकर कि ये व्यक्ति अब सुधर नहीं सकता, He'll never be able to fix it. वो कभी भी उसे ठीक नहीं कर सकता। But when God calls you, परंतु जब परमेश्वर किसी को बुलाता है, when they ask you what you're doing, जब कोई मुड़कर आपसे पूछता तुम क्या कर रहे हो, say the Lord has need. कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। Amen. आमेन। When they brought him to the Lord, जब उन्होंने उसे खोलकर प्रभु के पास ले आए, that colt behaved as if he had been trained for many years. वो उस जानवर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे सालों से वो प्रशिक्षण पाया था। The crowds, the shouting of the multitudes did not affect them. भीड़ का चिल्लाना और पुकारना उसे विचलित नहीं किया। Children running here and there. बच्चे उसके सामने से यहाँ वहाँ दौड़ भाग रहे, People waving palms. कोई वो खजूर की डालियां हिला रहा, It did not distract him. लेकिन वो पशु से किसी प्रकार से विचलित नहीं The हुआ, master was in control. क्योंकि नियंत्रण प्रभु के हाथ में The था। king is on the ass. राजा जो उस गधी पे सवारी करके जा रहा, Behold your king. देख तेरा राजा। You see the miracle. चमत्कार को The देखिए। untrained ass. एक अप्रशिक्षित एक गधी, He behaves as if he's been accustomed to all the वो situations. ऐसा व्यवहार कर रहा जैसे कि वो इस परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित हो। Upset Pharisees. और फरीसी निराश खड़े हैं, And they look at all these things. ये सारा चिल्लाना पुकारना सुन रहे हैं, And they are also wondering, और वे लोग भी चकित हो रहे, सोच रहे how come this animal behaves so well? कि कैसे ये जानवर ऐसा अच्छा व्यवहार कर रहा है। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, that same king can do a change in our lives. वही राजा जो है आपके और मेरे जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। People might have given up on us. लोगों ने हमारी जिंदगी को लेकर हार मान लिया You said होगा, this guy will never change. ये सोच कर कि ये व्यक्ति नहीं बदल सकता। We have tried, we have counseled, we have done everything. हमने प्रयास किया, हमने सलाह दी, सब किया। We have sent him to psychologists. हमने इस मनोवैज्ञानिक के पास भेजा, We have sent him to good school. हम अच्छे स्कूल उसे भेजे, We have taught him everything. हमने उसे अच्छा सब सिखाया, It doesn't work. परंतु कार्य नहीं करता। Friends, प्रिय दोस्तों, God specializes परमेश्वर खासियत रखता है in things called impossible. असंभव जिसको लोग बोलते हैं उस कार्य में। Amen. आमेन। And he only wants a willing worker. और वो केवल ये चाहता है कि इच्छुक सेवक आए। Amen. आमेन। When he takes over, जब वो नियंत्रण लेता है, the untrained becomes trained. अप्रशिक्षित भी
प्रशिक्षित हो जाता The है, untamed becomes tamed. और जो सिखाया नहीं गया वो सब सीख जाता है, Absolute and full control. संपूर्ण नियंत्रण के अंदर, Riding upon an ass. और गधे के ऊपर सवारी करके जा रहा। Hallelujah. Hallelujah. That's what God can do. परमेश्वर यही कर सकता है। That ass never knew उस गधे को मालूम नहीं था he's fulfilling prophecy. कि वो भविष्यवाणी को पूरी कर रहा है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You might be in a corner, हो सकता आप भी किसी कोने में बंधे हैं, but when God calls you, किंतु जब परमेश्वर आपको बुलाएगा, you are also fulfilling God's will. आप भी आकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। God has not chosen the wise and the prudent, परमेश्वर ने जगत के बुद्धिमानों को नहीं चुना है, the fools, परंतु जगत के मूर्ख, the rejected, तिरस्कृत को, the outskirt. जो निकाल दिए गए ऐसे लोग को God has chosen them. परमेश्वर ने ऐसे को चुना है। Amen. आमेन। He is executing the plan. परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर रहा है, He is focused on the purpose. वो उस उद्देश्य को लेकर केंद्रित है, He prepared for the task. उस कार्य के लिए तैयारी कर रहा है, He executes, और उस कार्य को पूरा His भी plan. करता है, अपनी योजना को, fulfilling the scriptures. पवित्र शास्त्र को पूरा कर रहा है। When God begins to move, और जब परमेश्वर कार्य करने लगे, He will move. वो पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Nothing can come against it. कोई भी चीज उसके विरुद्ध में नहीं आ सकती। His entry into Jerusalem यरूशलेम में प्रवेश करते हुए was not advertised. उसका कोई भी विज्ञापन पहले से नहीं किया गया था। Then, come, there's going to be a celebration. कि आओ आओ, यहाँ पर एक बड़ा पर्व का मनाया जाना होगा। Everything was spontaneous. सब चीज जो वहां पर उस दिन घटी वो सब अपने आप हुई। We can plan, it is good to plan. योजना बनाना अच्छी बात है, हम बनाते हैं, But if God is not there, किंतु उस योजना में यदि प्रभु नहीं है nothing is going to work. तो कुछ भी काम नहीं करेगा। And sometimes कभी कभी it's unplanned. वो योजना में नहीं रहता, And the Spirit of God takes over. परंतु परमेश्वर का आत्मा परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेता है, Everything's fall in place. और सब चीजें सही ढंग से होने लगती। Without His Spirit, songs don't sing. बिना आत्मा के वहां गीत नहीं गाते, Without His Spirit, the word is not going through. बिना आत्मा के वहां वचन नहीं जाता। But when God comes in, किंतु जब परमेश्वर वहां आता है, everything changes. सब चीजें बदल जाती हैं, And Jesus now is in absolute control. और यीशु मसीह अब सब अपने नियंत्रण में ले लिया है। Crowds, भीड़, people, लोग, palms, और खजूर की डालियां, and clothes और कपड़े all over. चारों तरफ। Nobody told them, bring your clothes and put it किसी ने there. नहीं बोला कि कपड़े लाकर यीशु के सामने बिछाओ। Nobody told them, bring the palms and put them. किसी ने नहीं बोला खजूर की डालियां काट कर उसके सामने डालो। Everything synchronized. सब चीजें सही ढंग से होने लगी, Because when King is coming, जो कि जैसे एक राजा चला आता है। hallelujah, हालेलुया, hallelujah, आमेन। He's coming meek and lowly. यीशु देखो वो नम्र है और मन में दीन Your है। king is coming. तुम्हारा राजा आ रहा है। Amen. आमेन। You see, when God moves, nothing can stop Him from moving. देखिए, जब परमेश्वर आगे बढ़ता है उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। Everything falls in place. सब चीजें अपनी जगह में सही बैठती है, They synchronize automatically. और वे आप आप इतने सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित हो गई। Sometimes when you're worshiping, कभी कभी जब आप आराधना करते हैं, it just flows वो जैसे कि बहने लगता है, because the Spirit is there. क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा उपस्थित है। And when Jesus was entering Jerusalem, और जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने लगा, it was so majestic. वो इतना वैभवशाली था Crowds and multitudes shouting, कि भीड़ और वो लोग जो वहां पर आए थे चिल्लाने लगे, Hosanna in the highest. होसैना स्वर्ग में, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। I think the Romans watching this whole thing, event, और जो must be wondering what's going to happen next. रोमी लोग इस घटना को होते देख रहे थे, सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा पता नहीं। The Jewish Sanhedrin is out of control. और यहूदी जो महासभा थी वो नियंत्रण से बाहर थी, And they said like this, और इस प्रकार से बोलने लगे just see, we prevail nothing. कि सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। The world is gone after him. देखो संसार उसके पीछे हो चला है। Amen. Amen. Even today, आज के दिन भी they think
लोग सोचते हैं they'll kill people, कि वो लोगों की हत्या यदि कर दें, burn the churches, चर्च को जला दें, burn the Bibles, बाइबल को यदि जला दें, they'll achieve their goal. तो उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। They are wrong. वे गलत हैं। Jesus is alive. यीशु क्योंकि जिंदा है। Amen. आमेन। Centuries have passed. और शताब्दियां गुजर गई। Whatever he does triumphs. और जो कुछ भी वो करता है वो विजयी होता है। His coming into this world was triumphant. उसका इस पृथ्वी पर आना विजय से भरा हुआ The था। heavens declared स्वर्ग ने घोषणा की, peace on earth, goodwill towards कहा men. पृथ्वी पर शांति, मनुष्य जाति पर अनुग्रह हो। Unto you is born तुम्हारे लिए आज के दिन जन्मा a Savior, एक उद्धार करता, who is Christ the Lord. जो प्रभु यीशु है। His entry into space and time was वो glorious. समय और दूरी को पार करते हुए जब आता, महिमामयी है। Everyone who saw him went back rejoicing. हर एक जिन्होंने यीशु बालक को उस दिन देखा था, आनंद के साथ लौट He के गए। became the object of worship. वो आराधना का एक साधन बन गया। He was a fountain of life. वो जीवन का सोता था। The words I speak to you, उसने कहा जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ, they are spirit and they are life. वो आत्मा है, वो जीवन है। Wherever he entered, he triumphed. जहां पर भी वो गया, वो वहां जय ही पाया। He went into the temple, he triumphed. जब मंदिर के अंदर गया, वो जयवंत He हुआ। cleansed the temple, nobody could stop him. मंदिर को जब वो साफ कर रहा था, कोई उसे रोक नहीं पाया। Single-handed, अकेले ही he was triumphant. वो विजयी रहा। It's not just triumphant entry in Jerusalem. ये केवल यरूशलेम में जय के साथ प्रवेश नहीं था, Always he was triumphant. वो हमेशा ही जय के साथ ही प्रवेश He किया। entered into cities. वो नगरों में गया He's triumphant. और वहां पर भी वो जयवंत हुआ। He entered into Jairus' house where death had taken place. और याइरस के घर जब गया, जहां पर मौत हुई थी, वहां पर भी He was triumphant. वो जयवंत हुआ। Hallelujah. Hallelujah. He goes to Gadarene. वो गदरीन नगर गया, Demons and darkness. वहां पर दुष्टात्मा और अंधकार का बोलबाला He था। was triumphant over them. यीशु वहां पर भी विजयी होकर गया। The storms on the sea. समुद्र में जब आंधी तूफान उठे, He spake the word and they obeyed. उसने वचन को बोला और आंधी थम गया। He was triumphant over nature. वो प्रकृति के ऊपर जयवंत He was था। triumphant over Satan. वो शैतान के ऊपर जयवंत था। He was triumphant over sickness. बीमारी के ऊपर जयवंत था। He was triumphant over every situation. हर एक परिस्थितियों के ऊपर जयवंत था। Amen. आमेन। Jesus यीशु मसीह is Lord. प्रभु है। Amen. आमेन। And now और अब he's showing his power. वो अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। For a little while. वो कुछ समय के लिए। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, He was triumphant over hell and death. वो नरक के ऊपर और मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हो गया है। He is triumphant over the grave. वो कब्र के ऊपर भी जयवंत हुआ है। He is never defeated. वो कभी भी पराजित नहीं हुआ। We serve a triumphant Christ. हम जिस मसीह की सेवा करते हैं, जयवंत मसीह है The वो। scripture says पवित्र शास्त्र बोलती है, he triumphed over all the principalities and powers of darkness. वो सारी अंधकार की ताकत और प्रधानताओं के ऊपर जयवंत हुआ He brought them under the feet of the church, और कलीसिया के पांव तले कर दिया, triumphing over them. उनके ऊपर विजयी हुआ। Made an open show of all the demonic things. दुष्टात्मा की ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा दिखाया। That's why इसलिए at the name of Jesus every knee bows. यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकता। The world has gone after him. दुनिया उसके पीछे चल चुकी है। Hallelujah. Hallelujah. The world has gone after him. संसार उसके पीछे चल चुका है We prevail nothing. और हमसे कुछ बन नहीं पड़ता। Let people plan. लोग योजना बनाते Let रहे, them do anything they want. वो जो भी करना चाहे करते रहे, The church of Jesus Christ लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया will always triumph. वो हमेशा विजयी होगी। Amen. आमेन। Because Christ is there. क्योंकि यीशु मसीह वहां है। What a glorious entry. क्या महिमामय प्रवेश। One day is coming. एक दिन जल्द आ रहा है, Again, फिर से आ रहा है, heavens will open. जब स्वर्ग खुल जाएगा, Jesus will come. यीशु आएगा, Triumphant.
विजयी रूप में। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Every knee shall bow. उस दिन हर एक घुटना झुकेगा, Every tongue shall confess. हर एक जुबान मानेगी Jesus Christ is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है, To the glory of the Father. पिता की महिमा के। We know He's not on the cross. हम जानते आज यीशु मसीह क्रूस पे नहीं है, He's not in the manger. वो आज एक चरनी में भी बालक नहीं है। He's not in photographs. He's not in idols. यीशु मसीह फोटोग्राफ में नहीं है, किसी मूर्त में नहीं है। He's alive, यीशु मसीह जिंदा है, sitting at the right hand of the Father, पिता के, स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठा है, highly exalted, पूर्ण रूप से महिमा पाया हुआ, King of kings and Lord of वो lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। You know one thing, आप जानते एक बात, another thing, एक और बात है, when He comes into your life, जब कभी वो आपके जीवन में आता है, you will triumph. आप भी विजयी होते हैं। Amen. आमेन। So if you have not accepted Christ as your personal यदि Savior, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, you have known about Him, आपने यीशु के बारे में कुछ सुना है, you have heard about Him, उसका नाम आप सुने हैं, but you have never experienced Him. लेकिन आपने इस यीशु मसीह को कभी अनुभव नहीं किया, Why not do it today? आप क्यों ना उस कार्य को आज करें? You might say, आप कहते होंगे I've tried everything in the world. मैंने दुनिया की सब चीजें प्रयास कर चुका हूं, But friend, I'll tell you one thing. परंतु दोस्त मैं आपसे एक बात कहूं, Try Jesus. प्रभु यीशु मसीह को परखो, He will never fail. वो कभी निराश नहीं करता। Demons, darkness, चाहे वो दुष्टात्मा वहां हो, चाहे अंधकार हो, depression, निराशा हो, whatever चाहे कुछ situation you might be in, परिस्थिति जो भी आपके पास हो, Christ has always been victorious. यीशु मसीह हमेशा उनके ऊपर में विजयी होगा। Amen. आमेन। So we'll pray. हम प्रार्थना करेंगे, Let this Palm Sunday होने दे ये खजूर का जो रविवार है, be a day when Christ enters your house. ऐसा दिन हो जाए जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश करने पाए, Enters your life. आपके जीवन में प्रवेश करने पाए। He is the light of the world. वो इस जगत की ज्योति है। When the light comes, darkness will go. जब कहीं पर भी ज्योति आता है, वहां पर अंधकार चले जाता है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। Jesus' name. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we thank you for Jesus Christ. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। We pray today आज के दिन हम तुझसे मांगते प्रभु, for those who have not known you as their personal Savior. उनके लिए जिन्होंने तुझको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके नहीं जाना है, Let it be so today, Lord, प्रभु आज के दिन ऐसा हो जाने दे that they will commit their lives unto Jesus. कि वो अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर सकें। And we know this, Lord, when you come into our lives, और हम इस बात को जानते प्रभु, जब कभी तो हमारे जीवन के अंदर आता है, you will turn away all our fears away from our lives. तू हमारे जीवन से हर एक डर और भय को दूर कर देता है। Darkness will go, अंधकार चले जाता है, defeat will go away. पराजय चले जाता है। You are a triumphant Christ. तू एक विजयी प्रभु है। So, Lord, we pray, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते, please come into our heart हमारे हृदय में आ and bless us. और हमें आशीष दे। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Thank you. Thank God for all His goodness and mercy. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसकी सारी करुणा और दया के लिए। And we'll be there in the, I think the churches have opened now. और कलीसियाएं जबकि खुल गई हैं, This week will be a special week और ये जो सप्ताह होगा एक बहुत ही खास सप्ताह है हम सभी के लिए, when we see all the events that have taken place. जब हम उन बातों पर मनन करेंगे जो इस सप्ताह में यीशु के साथ में घटी थी। Amen. आमीन। Thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। Thank you for your offerings. आपकी जो भेंटें हैं उसके लिए भी धन्यवाद। God bless you. प्रभु उसके लिए आपको आशीष दे। We sing a chorus इस समय कोरस को हम गालेंगे and you can put the offering और in your आप house. अपनी भेंटों को जहाँ जमा कर रहे हैं उसे एकत्रित कर सकते हैं। There
really ought to be a sigh upon my heart. Don't judge yet, there's an unfinished part. And I will be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Thank the Lord for this offering. प्रभु हम इस भेंट के लिए धन्यवाद देते, Pray your blessing upon it. तेरी आशीष उसके ऊपर में होने पाए प्रभु। We pray you will bless those who gave. प्रभु जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष देना, That we all together will love you and serve you all the days of our life. ताकि हम सारे लोग मिलकर जीवन भर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम कर सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन।